Hello everyone, I am Riti and here is my next and closing video covering our road trip from Bangalore to Madurai to Rameshwaram to Pondicherry and back to Bangalore. If you have not seen my previous videos, I have shared the link for the same in description box. As per suggestion of our known person, we decided to go back to Bangalore via Pondicherry instead of गोइंग टू कन्याकुमारी। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैंने रामेश्वरम से पौंडीचेरी की रोड ट्रिप, पौंडीचेरी में देखने वाली जगह और पौंडीचेरी से बेंगलोर की रोड ट्रिप एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। हम रामेश्वरम से तकरीबन 7 बजे चले। पौंडीचेरी जाने के 2 रास्ते गूगल मैप्स दिखाता है, जिसमें से एक रास्ता त्रिची से होकर जाता है जो कि 437 किलोमीटर्स था और लगभग 7 घंटे का समय लगता है। Second route which Google showed was alongside the sea line and a distance of about 387 km was estimated with a time of around 8 hours. हमने त्रिची से जाने वाले रास्ते को चुना और यह रास्ता NH87, NH32, NH536 और NH38 से होता हुआ पौंडीचेरी जाता है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग होटल हमें ब्रेकफास्ट नहीं प्रोवाइड कर पाया था, इसलिए हमने कुछ फ्रूट्स एंड स्नैक्स रास्ते के लिए रख लिए। रामेश्वरम से पौंडीचेरी तक हमें कोई अच्छा ढाबा या फूड पॉइंट देखने को नहीं मिला, इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप भी अगर रामेश्वरम से पौंडीचेरी का रोड ट्रिप कर रहे हैं तो खाने पीने के लिए सेल्फ कंटेन्ड रहें। That is a distance of about 225 kilometers from Rameshwaram. The road condition is not that good and it is a 2-lane road with no divider in between, although there was not much of traffic on the road as well. After we crossed Trichy, the road condition improved and the national highway also became 4-lane, although we found a large number of toll plazas on this route. बाद जब हम पौंडीचेरी के पास पहुंचते हैं तब फिर से 40 से 50 किलोमीटर्स पहले NH छोड़कर हमें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर जाना पड़ता है। ये रोड थोड़ी सी लोनली है और बीच बीच में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। Pondicherry, or officially known as Puducherry, was a French colonial settlement in India until 1954. It is one of the 8 union territories of India. It has Bay of Bengal on its east and is around 20 square kilometer in area. The suggested time of the year to visit this place is October to March every year, since it has high humidity and high temperature during remaining period of the year. जब हम पौंडीचेरी पहुंच रहे थे तब हमें एहसास होने लगा कि यह जगह अक्टूबर के महीने में मदुरई और रामेश्वरम से भी ज़्यादा गर्म था। पौंडीचेरी में भी हमने GoIbibo के ऐप से ही होटल बुकिंग करी थी। हमने 1 नाइट के लिए होटल रानी रेजिडेंसी पौंडीचेरी में बुकिंग करी थी, जो कि हमें 3 लोगों के लिए 2100 रुपीज़ पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट कॉस्ट किया। होटल में चेक इन करने और फ्रेश होने के बाद हम लंच के लिए बाहर गए। होटल रानी रेजिडेंसी में कोई भी किचन नहीं है और फूड
कि कोई भी रिक्वायरमेंट होने पर बाहर से मंगाना पड़ता है। After lunch, we proceeded to visit the Pondi Ocean Park near Paradise Beach. This is an amusement and water park situated alongside southern end of the Chunambar River. It has both land and water adventure activities. Although few of the water sports like jet ski, scuba diving were not available as the park claimed that the water level was shallow and rises post December every year. Timing for visiting the Ocean Park is 9 a.m. to 6:30 p.m. पैराडाइज बीच पहुंचने पर हमने एंट्री टिकट लिया जिसकी कॉस्ट 70 रुपीज़ पर हेड थी। पैराडाइज बीच एक खूबसूरत वाइट सैंड बीच है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स mesmerizing beauty, sparkling water and jaw-dropping scenery, offering a peaceful yet delightful experience to relax and rejuvenate. Here you can lay down under the sun, walk on coastline, play water sports, or simply satisfy your hunger at nearby eateries after an adventurous day. यहाँ पर बीच चेयर रेंट पर मिलती हैं जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ पर आवर है। ये चेयर्स बीच लाइन से तकरीबन 50 मीटर्स की दूरी पर हैं। फ्री बीच चेयर भी हैं पर वे बीच लाइन से तकरीबन 100 मीटर्स की दूरी पर हैं। पैराडाइज बीच की साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी है और आपको ढूंढने से भी कहीं भी गंदगी या कूड़ा नहीं मिलेगा। यहाँ पर लाइफ गार्ड हमेशा मौजूद रहते हैं। देयर आर क्लीन, हाइजीनिक, changing and washrooms. Paradise Beach also have certain sports activities along with rain dance for which you have to pay additional amount based on the selected activities. Timings for visiting the Paradise Beach is 9 a.m. to 6 p.m. Paradise Beach के बाद हमने एडन बीच की तरफ ड्राइव किया। हालांकि दोनों बीचेस में कोस्ट लाइन से दूरी 1 किलोमीटर है और रोड से तकरीबन 7 किलोमीटर्स। एडन बीच पर भी कार पार्किंग है और यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं है। टाइमिंग्स फॉर विजिटिंग द एडन बीच इज 6 a.m. to 6 p.m. In September 2021, Eden Beach joined the elite club of Blue Flag beaches in India, taking up the tally to a total of 10 Blue Flags beaches in India. Blue Flag is awarded by an agency of Denmark after evaluation on strict criteria including water quality in the beach, ocean currents, cleanliness, facilities for disabled persons, parking and toilets. हालांकि जब हमने एडन बीच विजिट किया तब यहाँ पर सेफ स्विमिंग जोन नहीं था और कोस्ट लाइन पर भी जाना अलाउड था। जेंट्स और लेडीज़ लाइफ गार्ड्स यहाँ पर भी मौजूद थे। इस बीच पर कोई अच्छा ईटिंग जॉइंट और कोई वाटर स्पोर्ट नहीं था। साफ़ सफाई एडन बीच पर भी काफ़ी अच्छी थी। एडन बीच के बाद हमने प्रोमेनेड बीच की तरफ रुख किया। प्रोमेनेड बीच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट बीच इन पौंडीचेरी, alongside which are the famous French War Memorial and the महात्मा गांधी स्टैचू। इस बीच पर हम शाम को पहुँचे थे। यहाँ की बीच कोस्ट लाइन पर सफाई नहीं है और गंदगी साफ नज़र आती है। इस बीच के साथ ही एक वॉक वे है जिस पर लोग इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ पेड पार्किंग है। देयर इज़ नो एंट्री फी फॉर विजिटिंग दिस बीच। टाइमिंग फॉर विजिटिंग द प्रोमेनेड बीच इज 6 a.m. to 8 p.m. जिस एंट्री पॉइंट से हम आए तकरीबन 800 मीटर आगे लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रेंच वॉर मेमोरियल है। फ्रेंच मेमोरियल इज डेडिकेटेड टू वॉर हीरोज ऑफ वर्ल्ड वॉर I who sacrificed their life to save the country. Renovated in 1970, it is one of the most pristine place to visit. Timings to visit the memorial is 10 a.m. to 5 p.m. Just few hundred meters ahead of French War Memorial is the महात्मा गांधी स्टैचू। महात्मा गांधी के स्टैचू के अपोजिट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी एक प्रतिमा स्थापित है। साथ में ही एक ट्रिब्यूट वॉल भी बन रही है जिसे स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है। नेहरू जी के स्टैचू के पीछे
थोड़ी दूरी पर ही एक क्राफ्ट बाजार है जिसमें तकरीबन 20-25 शॉप्स हैं। इन शॉप्स में अलग अलग क्राफ्टेड सामान बेचे जाते हैं। While going back to the car parking, we walked through the French colony. As we all know, the colony has got a different architecture which is more evident with the use of bright color on the building. अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम एरोविल गए। एरोविल वाज डिजाइन्ड बाय आर्किटेक्ट रॉजर एंगर. Auroville is must visit where people of different nationalities, cultures and beliefs live together in harmony. यह आश्रम 28 फरवरी 1968 में मदर मीरा द्वारा श्री अरबिंदो के निर्देशानुसार स्थापित किया गया था। इस आश्रम में 100 रुपीज़ की कार पार्किंग फीस ली जाती है। आश्रम में एंट्री फीस नहीं है और विजिट करने का समय सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है। कार पार्किंग के बाद से टिकट काउंटर तक पैदल जाना पड़ता है। बीच में ग्रीनरी और लोटस पॉन्ड्स इस जगह को और भी सुंदर और खूबसूरत बनाते हैं। वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स ऑफ एरोविल इज द मैत्री मंदिर, ए मॉडर्न स्ट्रक्चर विद हाई सिग्निफिकेंस फॉर योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस। यहाँ तक जाने के लिए टिकट लेने के बाद तकरीबन 500 मीटर पैदल चलना पड़ता है। पूरे रास्ते में कोई भी एरोविल का स्थायी निवासी बात नहीं करता हुआ मिलता है। इनफैक्ट अगर किसी रास्ते या वॉशरूम के लिए भी हमने पूछा तो उन्होंने इशारे से हमें डायरेक्शन बताई। मैत्री मंदिर से लौटते हुए एक बस पॉइंट है जहां से बस में बैठकर आप रिसेप्शन तक पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन के पास 2 शॉप्स बुटीक और क्लोथिंग की थी, साथ ही में एक रेस्टोरेंट भी था। After returning from Auroville, we went to the nearby Auroville beach. The beach was a smaller one, but to the utter disappointment. It was not at all clean and was unlike the preceding 3 beaches which we saw the previous day. We spent just a few minutes on the beach and went back to the hotel. After reaching back the hotel, we started back from Bangalore within 15 minutes. Google showed 2 routes to Bangalore via NH32, NH77, NH179B and NH48, totaling to 307 kilometers. The second one was around 357 kilometers through NH32, NH77, NH179B, SH4, SH132 and NH48. We started off with the smaller routes as suggested by Google Maps. NH48 के आने तक ज़्यादातर रूट 2 लेन है। NH48 पर होटल श्री सर्वना भवन में हमने लंच किया। इनकी सर्विस बहुत क्विक और खाना अच्छा था। इनके आसपास में KFC और काफ़ी सारे फास्ट फूड की शॉप्स भी थी। एंड पूरे रास्ते में हमें 3 टोल प्लाज़ा मिले। बेंगलोर तक की पूरी जर्नी लगभग हमने 6 आवर्स में कंप्लीट की।
I have tried my best to consolidate all the important inputs from my journey and the places we visited. If you liked my videos, share and subscribe. Any comments and suggestions are welcome.